Hi, I'm live on Why Hide Season 2, Episode 8 with Rohit. So, Instagram is telling people that I'm live. We're telling followers. Okay, so we'll just gotta give it a second before people join. So, I see Vidushi, hello. Simi, hello. Chacha, hello. Okay, I see 4. So, hello Gurveen, hello Mummy, hello Kanika. Okay, nice. Thank you guys. Thank you for joining. Hello, Ashidada. Okay, hi. Hello, Dave. Wow. Hi, Geet. Okay, so people are joining in right now. Hello, Anu. Thank you so much, everyone, for joining. We are live on episode 8 for season 2 Why Hide. So it's good to see you all here again. I think I have Rohit too. Yes. Hi, Shrey. Okay, people are still joining. So I have your request, Rohit. So thank you for that. We'll just probably wait for a few seconds before others join because I can still see people joining in here. So thank you everybody for joining. Hello, Harshit. Hello, Sahil, Ansh. Okay, great. Thank you so much, guys. Thank you so much for joining. Hello, Chachi. So family is here. Thank you so much, everybody. Hello, Srishti. Okay, good. So I think we have a great count. People are joining in right now. So without wasting a lot of time, I think I'll just go ahead and start with the show today. और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक यूनिक टैलेंट हैं. Hello, Dia Kumar Sri. Okay, so this is for hello Rohit. So Rohit is yet to come, Dia. So you got to stay on and wait for him. But hi. Okay, hello Papa. Yeah, so I was just saying that जो आज के हमारे गेस्ट हैं रोहित, he's a multi-talented musician और ये क्या क्या करते हैं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे. So so he plays keyboard and he's part of he has played with a lot of bands. So उसमें बहुत अच्छा इन्होंने play किया है and then he has a really good reputation also. So मैं अपने शो की शुरुआत जैसे करता हूँ मैं वैसे ही करूँगा. So I'll start with my song of the day and then we'll have Rohit live with us. Hello Papa. Okay, आज का जो गाना है वो मतलब वैसे तो बहुत ही फेमस है बट आई हैव नेवर संग इट पहले, तो इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट फॉर यू. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को ये मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी. तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं,
तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पैरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। हे मैं रंग रंगीली दीवानी, हे मैं अलबेली मैं मस्तानी, गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, ये मैं दीन धर्म से बेगानी, हे मैं दीवानी, मैं दीवानी तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। वाओ, थैंक यू सो मच। बहुत सारे ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। आई थिंक आई रेड ऑलमोस्ट ऑल, जहाँ जहाँ पे बस आँख बंद नहीं होगी मेरी, बट अदरवाइज आई थिंक सुपर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी for appreciating and for writing all of these comments. Okay, we're still getting the comments, so thank you so much everyone. Vidushi, Srishti, Chachi, Mummy, Kanika, Chachi ji, Papa, Chacha, Rachna. Okay, इतने मुझे याद हैं, but I think I saw many more. So thank you everybody for commenting. Thank you. Okay, so now is the time to call our guest. तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है रोहित सोनी, और वो क्या करते हैं वो हम उनसे भी बात करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या करते हैं. तो रोहित, इफ यू कैन हियर मी राइट नाउ, आई एम गोइंग टू टेक यू लाइव नाउ. Thank you, Vedant. Hi, Rohit. हेलो. आवाज कम है. कुछ गड़बड़ हुआ. Okay, in the meantime, I can just welcome my guests. So, hello Lakshay, hello Taiji, hello Pubaji. Thank you, family, for joining again.
some network issues, I guess. So we'll see. Let's try again. Hello Rohit, can you hear me? यस आई कैन हियर यू। मगर मैं क्लियर क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो आप क्लियर दिख रहे हो। मेरे को मैं क्लियर नहीं दिख रहा। चलो अच्छा ऐसा। कोई नहीं। हाँ मेरे को मैं क्लियर नहीं दिख रहा मेरे को। मतलब क्या दिख रहा है, कुछ ब्लर दिख रहा है या साफ नहीं दिख रहा बिल्कुल क्या? बिल्कुल गया आ रहा है मेरे सामने। बिल्कुल ब्लर आ रहा है तो आई थिंक यार वो नेटवर्क का ही कुछ हो सकता है। तो एक बार लेट्स डू वन थिंग, एक बार आप इसको एग्जिट करो और फिर मैं आपको ओके दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। श्योर। ठीक है। ओके। ओके सो लेट्स सर्च रोहित हियर। बेटर। यार तुम मुझे तो अभी भी एकदम परफेक्ट दिख रहे हो जैसे पहले दिख रहे थे। और मेरी तरफ ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो बिल्कुल पहले ब्लर था। अब बिल्कुल ब्लैक आ रहा है बिल्कुल ब्लैक। ब्लैक तो चलो नहीं कोई। आ। मतलब एक बात बताओ, तुमने पहले इंस्टाग्राम लाइव किया है कभी? हाँ पहले बेटर था लेकिन इस टाइम ब्लैक आ रहा है। मेरा एरिया है ना स्क्रीन पे वो ब्लैक है। आपका क्लियर आ रहा है। हम्म। चलो कोई बात। कोई कोई इशू नहीं। तो देखो हम तो तुम्हें देख सकते हैं तो। हाँ हाँ। और मैं आपको देख रहा हूँ आराम से। तो कोई दिक्कत। अच्छा तुमने क्या घर के अंदर मास्क लगा रखा है ये? मेरे आसपास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मेरी अपनी ऑडियंस बैठी है आसपास। वाह। मैं मेरे आगे मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं और मेकअप आर्टिस्ट है मेरा। फोटोग्राफर है सब दोस्त बैठे हैं आसपास। पापा भी वाह। बैठे हैं पीछे। बहुत ही बढ़िया। बहुत ग्रैंड सेटअप लेके बैठा हूँ मैं यहाँ पे। ग्रैंड फुल सेटअप। लाइटिंग के साथ। मैंने ओके पीछे दिखा नहीं सकता बस मैं। बाकी बहुत बहुत बड़ा सेटअप है। ओके परफेक्ट। तो ठीक है रोहित, मैंने अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं है तुम्हारे बारे में, बट आई थिंक आई गेव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन कि तुम क्या करते हो और व्हाट ऑल डू यू डू। वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि तुम क्या क्या करते हो। बट थोड़ा बहुत अगर छोटा बहुत कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहो और कुछ हमें सुनाना चाहो तो यू मोस्ट वेलकम। ओके पहले मैं कुछ सुनाता हूँ ओके। फिर बात करते हैं। श्योर। मैं मेरे पापा की कुछ गाने की रिक्वेस्ट थी मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। ओके। श्योर। ओके रोहित, आई एम सॉरी मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा, बट तुम्हारी सिंथ की कीबोर्ड की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही।
मुझे बहुत लगा कम है। शायद, मुझे बहुत ही कम है। ओके। जो तुमने स्टार्ट किया था छूकर मेरे मन को, वो थोड़ा सा सुनाई दिया था, तो मुझे लगा शायद अभी बेटर होगा, बेटर होगा, बेटर होगा, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही रहा पूरा उसमें। आई थिंक तुम्हें अपने फोन को, या जिससे भी तुमने कनेक्ट किया हुआ है, उसको थोड़ा सा पास करना पड़ेगा अपने इंस्ट्रूमेंट के। हाँ, मच बेटर। अभी सही है। अब तुम थोड़ा सा दोबारा बजाओ जो तुमने बजाया था। ओके, लवली। हाँ, थैंक बेटर है। यू। ओके। कौन कौन है? कि तो बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पे, 26 लोग अभी हैं, तो आई डोंट नो कि उसमें से तुम्हारे या मेरे कितने हैं, बट मुझे अपने बारे तो सारे पता है। सो आई हैव ऑलरेडी थैंक्ड माय फैमिली, बट इफ यू वांट टू से हाई टू योर फ्रेंड्स आल्सो, तो आप बोल सकते हैं। ओके। मेरी सिस्टर भी ज्वाइन। ओ, खाली बैठी हुई नीचे। अच्छा, तुम्हें अपना फोन साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम नीचे देखोगे तो हमें कैसे देखोगे। हाँ, श्योर। ओके। हाँ, अभी सही है। ठीक है। ओके, तो रोहित आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कि यस। तुम जाते हो वो तो हमने देख ही लिया, एंड बढ़िया तो बजाते हो वो तो सबको पता है, बट अभी हमें कुछ वैरायटी भी देखनी है आगे। तो थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद विल टॉक एंड विल सी कि तुम और क्या क्या बजाते हो। ओके। हाय सर। ये सिस्टर। बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं यहाँ तो। यस। ओके। तो यस। ये रोहित जो शो है उसका नाम है वाई हाइड। ठीक है, और उसका जो थीम है वो ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई टैलेंट है तो वो उसको प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, और अपने आप को दबाएं नहीं। तो क्या कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ है कि जहां पे तुम्हें लगा हो कभी कि यार ये तो चीज मेरे बस की है नहीं, ये तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा, बट फिर धीरे 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 मेहनत करके तुमने उसको अचीव किया, या मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आता हो तो। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपको जैसे मैंने बताया था, मेरी लाइफ की स्टार्टिंग ना बहुत, मतलब कोई कुछ प्लान नहीं था लाइफ में। मेरे को आज से 3 साल पहले पता भी नहीं था कि मैं कभी आगे लाइफ में लाइव शो भी करूंगा। मेरे कोई आइडिया नहीं था कभी भी। बस एक कहते हैं, ये फ्लो होता है। मैं फ्लो के साथ चलता रहा। म्यूजिक मेरा बचपन से था। और मैं बचपन में ना, बाल्टी होती है, तो बाल्टी में ड्रम्स प्ले करता था बचपन में मैं, और बाल्टी तोड़ता था घर पे। और फिर वो कर करके धीरे धीरे फिर मैं 12th क्लियर किया। फिर एकदम से ना मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि डांस करते हैं, दोनों भाई डांसर बनेंगे। मैं बड़ा खुश हो गया। मैं डांस, अब तो डांस डांस करना, डांसर बनेंगे। और हम टीम में अकेडमी में गए थे डांस सीखने। हमने टीम में डांस वगैरह सीखा। फिर मुझे लगा नहीं, ये नहीं, ये चीज ना अपने अंदर नहीं है अभी। वो डांस नहीं है बिल्कुल भी। कुछ यार कुछ टाइम बाद पता लग जाता है कि आपको फील नहीं आ रही डांस में, जो आप एक म्यूजिक साथ कर सकते हो। फिर मैंने थोड़ा टाइम बीता बीता। फिर वो 1 साल मैंने अपना वेस्ट किया सिर्फ सोचने में घूमने में वेस्ट किया अपना 1 साल पूरा। मतलब और कुछ ही नहीं किया 1 साल। मैं 12th किया गया और घर में बैठा था, घूमता था, सोचता था कि करना क्या है। फिर फिर मेरे मन में आया कि चलो प्रोडक्शन सीखते हैं। म्यूजिक बनाते कैसे हैं, एक्चुअल म्यूजिक बनता कैसे है। ये आज की इंडस्ट्री बहुत एडवांस हो गई है, सब डिजिटल हो गया सब कुछ। तो हमें पता होना चाहिए कि एक एक्चुअल डिजिटल म्यूजिक बनता कैसे आज की डेट में। तो मैंने प्रोडक्शन सीखा दिल्ली से ही। प्रोडक्शन सीखने के बाद उसके बाद तब भी मेरे को आइडिया नहीं था कि कभी मैं लाइव शो करूंगा। कोई आइडिया नहीं था मेरे को दूर दूर तक। एक दिन बाई चांस घर बैठे में फोन आया कि ब्रो एक ना शो है, करेगा? मैं कहा हाँ कर लूंगा। कहते देखो, मेरे को कीबोर्ड नहीं प्ले करना,
मेरे को कैमॉन प्ले कर रहे हैं वहाँ पे। ओह। मैं एज अ कीबोर्डिस्ट गया ही नहीं था। मैं वहाँ पे गया, मैं ठीक है प्ले कर लूँ अब वहाँ पे एक कीबोर्डिस्ट बैठा हुआ था अपने कीज के साथ। तो मैं कीज प्ले करने लगा। तो जो बाकी मेंबर्स थे ना उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरे बोला तू कीज प्ले करेगा तो कैमॉन नहीं प्ले करेगा। ऑन द स्पॉट, विदाउट एनी जैम ना, कोई जैम नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं पता। मुझे बोला तुझे सिर्फ प्ले करना है। उसके बाद वो मेरा लाइफ का पहला शो था, बिल्कुल फर्स्ट शो था मेरी लाइफ का। और ज्यादा ऑडियंस नहीं थी, अराउंड 30 to 40 लोग थे। फिर उसके बाद जब वो शो हिट हुआ हमारा बहुत ज्यादा, तो मेरे को लगा कि चलो ये ना आगे कंटिन्यू करते शो करना। फिर मैंने अपना एक छोटा सा बैंड बनाया, हम 2 लोग थे बस। एक वो अभी भी साथ रहते हैं हमारे। तो हमने एक छोटा सा बैंड से स्टार्ट किया, दिल्ली में शो करना शुरू किया। फिर बस आज चलते 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 करते 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 आज यहाँ पहुंच गए। वंडरफुल। आई थिंक ये लेकिन बहुत कभी भी कभी ना मैंने ये ऐसा नहीं सोचा कि म्यूजिक ड्रॉप करना है, कुछ और करते हैं। ऐसा कभी माइंड में आया ही नहीं। करना कुछ भी करना म्यूजिक में ही है। चाहे ग्रेट। आप एज अ कीबोर्डिस्ट, एज अ ड्रमर, मैं कुछ भी करता लेकिन करता म्यूजिक ही। मैंने कभी भी, मेरे को मेरे दोस्तों ने बोला कई बार, अबे यार छोड़ दे, कुछ नहीं है इसमें। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे सामने ही बैठा हुआ है अभी, मुझे बोलता है कि मैं तेरे को फोटोग्राफी सिखाऊंगा, तू वो कर, बड़ा मजा आएगा, दोनों भाई करेंगे। अब मोटिवेट भी करते हैं और डिमोटिवेट सब करते हैं। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं डिमोटिवेट करने वाले। लेकिन ट्रू। उस टाइम पापा पापा मम्मी ने बोला कि तेरे को जो करना है तू कर, लेकिन दिल से कर, अच्छे से कर। ऐसा नहीं होना चाहिए यार तू एक साल ये कर रहा है, अगले साल कुछ और कर रहा है। तो फिर और फिर अच्छे, जब मैंने म्यूजिक वगैरह सीखा, अच्छे लोगों से सीखा, नए नए दोस्त बनाए इंडस्ट्री में। और बस। ग्रेट। आई थिंक मैं यही यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो इंस्पिरेशन है, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग कि आपके पास कोई टैलेंट है, आपको सडनली कोई मौका मिलता है और आप उसमें एक्सेल करते हो। पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू, आपको उसके बाद ऑफर्स मिलते हैं। एंड देन द बेस्ट थिंग इज दैट यू डोंट लीव इट। आप उसके ऊपर स्टिक रहते हो कि भैया ये मुझे करना है। लेट मी डू हार्ड वर्क, लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट, बट मुझे कुछ अचीव करना है। एंड आई थिंक वी, यू नो लुकिंग एट योर शोज, जैसे मैं तुम्हारे पोस्टर्स देखता हूँ, वो कितना प्राउड फीलिंग होता होगा ना कि अपने पोस्टर पे अपना नाम लिखा हुआ है और सब तुम्हें तो, जानते हैं। सो तो दैट्स ग्रेट। बहुत बड़ा मजा आता है जब हम एंट्री करते हैं स्टेज पे। तो ये अलग ही ना प्राउड मोमेंट रहता है कि चलो सामने ऑडियंस तो है, 1000 2000 30,000 लोग का ऑडियंस है। लेकिन उसमें से हम लोग जो स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम 5 लोगों को एक मौका मिलेगा, स्टेज पे खड़े हो रहे हैं, हमें 10,000 लोग देख रहे हैं सामने से। और उसके बाद जब कोई पीछे बोलता है रोहित, तो और मजा आता है। हाँ यार, वो तो है ही। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीलिंग। अगर आप किसी क्राउड में आप किसी के लिए परफॉर्म करो और आपका बीच में से अगर कोई नाम बोल दे तो वो तो खैर सोने पे सुहागा है। ओके, ये और नवनीत बड़ा कोई अच्छा है। लगता है ये पूरे लोग, उन्होंने लिखा तू तुम आंखों आंखों का का तारा है तारा है भाई। भाई। लवली। चलो रोहित, आई थिंक ये जो ये क्वेश्चन था, आई थिंक यू हैव आंसर्ड इट वेरी वेल। और मैं यही बस बोलना चाहता हूँ सबको कि लुक एट रोहित। स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा, चाहे कैसे भी करें, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू अचीव इट, उसके बाद जो वो सेटिस्फैक्शन होता है, वो दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो वर्क हार्ड एंड डू नॉट हाइड, कम आउट एंड शोकेस योर टैलेंट। यस, ये बहुत जरूरी है। अगर आप छुपा कर रखोगे ना, तो कभी सामने आएगा ही नहीं। क्योंकि आपको कोई बाहर से कोई बंदा आके आपका टैलेंट नहीं निकालता, आपको खुद शोकेस करना पड़ता है। करेक्ट। पहले मैं भी बहुत शर्माता था भैया, बहुत शर्माता था मैं भी पहले स्टार्टिंग में। बड़ी शर्म आती कि कोई देख रहा है, कोई वो कुछ लोग पहले ना कमेंट, अच्छा लोग कमेंट करते थे कि तुम लोग कैफे में प्ले करते हो, क्लास में प्ले करते हो। और कई बार कुछ लोग ड्रंक ड्रंक होकर आता ड्रिंक करके आते थे हमारे सामने, तो वो कमेंट्स करते थे उस टाइम। लेकिन ठीक है, वो फेस ठीक था उस टाइम। लेकिन जो आज हम जिस फेस में मैं हूँ, बड़ी खुशी होती है कि चलो थोड़ा एक स्टेप तो आगे तो बढ़े हम लाइफ में। ग्रेट। अगर ठीक मैं है। उस टाइम ड्रॉप कर देता तो आज कुछ देखो, और कर रहा होता मैं उस थोड़ी सी बातों को कट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी अभी आगे। तो वी विल टॉक टाइम। मोर, विल टॉक मोर, लेकिन थोड़ी और देर में अभी। तो यार कुछ कुछ एक और हो जाए बढ़िया सा। ओके। तो अच्छा मैं वो कोई और इंस्ट्रूमेंट लेकर चलूँ? उसके लिए एक सेगमेंट है अभी आगे।
ओके, चलो एक काम करते हैं, आपकी चॉइस लेते हैं, आप गाना बताओ, या कोई ऑडियंस में से हो तो वो कोई गाना बता सकते हैं। Cool. So let's check with the audience. यार अच्छा, शो तो काफी सारे लोग हैं। शो योर इंस्ट्रूमेंट टू। मेरी कीबोर्ड दिख नहीं रहा है। नहीं, सही में नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है बेटर। थोड़ा सा, अब थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है। ओके। ओके, somebody says play तेरे बिन, ये हमारी पहली रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे। और ये मेरी सिस्टर है। ओह ये मेरी सिस्टर है। मगर ये तेरे दिन कौन सा वाला है? हाँ यार, तेरे बिन तो बहुत सारे। हाँ। घूमर। चाहिए तेरे दिन होगा। ओके, तेरे दिन नहीं लगता। तेरे बिन नहीं लगता, अच्छा। और भी थे बहुत सारे, एक था घूमर। और घूमर, वो बहुत ट्रिकी है। उसके लिए बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे को। अगर अगर तुम साथ हो। अगर तुम साथ। सॉरी, मैं गाना ही भूल गया। पर पल भर ठहर जाओ। मुझे गाना इतना ही याद है। कोई बात नहीं। सो और लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है रैपिड फायर। तो जिसमें तुम बोल रहे थे अभी कि यू हैव सम मोर इंस्ट्रूमेंट्स टू शो। तो क्यों? जो मैंने रैपिड फायर रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आज के लिए। मतलब ऐसे जनरली क्या होता है कि मैं कोई गाना बताता हूँ, या मैं कोई थीम देता हूँ, या मैं किसी एक्टर का नाम बताता हूँ, उसके ऊपर जो भी सामने वाला होता है वो गाता है। बट नाउ सिंस यू आर एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, तो मेरे पास वो ऑप्शन तो था नहीं। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको। अब ट्रिकी हो गया बहुत। जो चेंज किया है वो ये है कि आई नो कि यू प्ले अ लॉट ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो, राइट? तो कीबोर्ड तो हमने देख लिया। नाउ यू शो अस समथिंग एल्स। सबसे पहले आई थिंक तुमने बताया था दैट यू प्ले मेलोडिका। मेलोडिका ऑल्सो, क्या? राइट? हो जाए कुछ। यस श्योर। मेलोडिका। अच्छा, एक गाने के पीछे से आ रही है, वो प्ले करूँ? हाँ हाँ, कोई भी। वाह यार, इसकी आवाज कितनी बढ़िया है। हाँ, ये अभी ज्यादा पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये अभी अभी आया है इंडस्ट्री में। और आजकल के नए गानों में यूज भी होता है ये इंस्ट्रूमेंट कई जगह। ये मतलब मुझे ऐसा साउंड, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक वो एकॉर्डियन नहीं होता था, बड़ा सा हारमोनियम टाइप, जैसे गले में लगा के, हाँ, उसके थोड़ी जैसे वैसे साउंड है।
उसकी जैसी आवाज लगेगी। ये वो पंपिंग साउंड जो होती है एक। यस, ओके परफेक्ट। तो ये तो हो गया एक, एक हो गया कीबोर्ड, वो हमने सुन लिया। अब हम देखते हैं एक इंस्ट्रूमेंट होता है कीटार, राइट? गिटार का भाई या बहन, जो भी तुम कहना चाहो। को शो करता हूँ। पहले आप एक बार इंस्ट्रूमेंट दिखाओ कि वो कैसा होता है टू द ऑडियंस, एंड देन प्ले। ओके, तो दिस इज गिटार, एक गिटार है। जैसे हम नॉर्मल गिटार देखते हैं तो गिटार में कीज लगा दी है बस, इतना अच्छा, डिफरेंस है। हाँ, और आपने कई जगह देखा भी होगा। शायद मैं गलत पहचान लिया होगा। हम्म, हम्मा। हम ये भी गैस कर लोगे। ये तो बहुत ही फेमस ओके, गाना ये सिम एक सिंथ है। ये एक्चुअल वायरलेस होता है, अभी भी वायर से कनेक्ट है। है। ओके, और इसको हम स्टेज पे अराउंड घूम सकते हैं लेके पूरा पूरे में आराम से। वाह। तो बहुत हैंडी है, थोड़ा सा भारी है लेकिन गुड है। तुमने, मुझे और जहाँ तक याद है, आई थिंक मैंने जो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी उसमें तुमने इसमें इलाही बजाया था शायद। यस, आई प्लेड। हाँ, प्लीज प्ले दैट। ये मैंने वहां प्ले किया था टामा में, क्या आप राइट, आए थे। करेक्ट, अभी थोड़ा ना बैठा हुआ तो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है उसे कैरी करना। विच इज ओके। हमने हमने देख लिया, थैंक यू। ओके, एक और मैंने तुम्हारे बायो में पढ़ा था कि यू हैव दैट जियो श्रेड आल्सो, राइट? या यू शुड। आई थिंक इसकी आवाज कम आएगी। ओके, दिस इज जियो श्रेड। अरे ये तो ये इस मैं कह रहा था ये तो एक ऐप जैसा है क्या? हाँ, ये एक ऐप जैसा है जिसको वर्ल्ड के बेस्ट कीबोर्डिस्ट ने बनाया है इस ऐप को। ओके, ये एक्चुअल गिटार साउंड है इसमें, ये एक्चुअल गिटार साउंड होती है। जैसे आप शायद ये वॉल्यूम कम होगी तो एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आ रहा ना? हाँ, इसकी वॉल्यूम एक्चुअली कम होगी क्योंकि टैग आईपैड में से आ रही है इसकी वॉल्यूम। ऐप में से आ रही है, ओके, राइट। भाई अगर आपको सुनना है तो आप मेरे बायो में जाओ, मेरा इंस्टा हैंडल, मेरा फेसबुक हैंडल पे जाओ, आप सुनो, लाइक एंड शेयर करो। यस, ऑफ कोर्स। आई होप यू लाइक इट। यस, आई लाइक इट। एंड आई थिंक मैं नीचे काफी सारे मैंने कमेंट्स भी पढ़े जहाँ पे लोगों ने लिखा कि नाइस, गुड, तो बढ़िया है। टू गुड, अमेजिंग। आशु, ओके, नाइस सॉन्ग। तो आई थिंक ये रैपिड फायर तो ऐसे ही निकल गया, कुछ ज्यादा मजा नहीं आया इसमें, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने सिर्फ ये देखा कि ये क्या क्या हुआ, यस। है ना? अच्छा, वैसे आप गाते हो बहुत अच्छा हो, मैंने आपको सुना है। थैंक यू। तो एक सॉन्ग हो जाए। अच्छा, ओ बा ठीक है। यार मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं, तो आई हैव टू थिंक। जो मैंने पहले गाया था वो तो मैंने प्रैक्टिस करके गाया था, बट ये वाला तो अब क्या गाऊं मैं इसमें? कोई नहीं, अच्छा, जितने भी लोग सुन आप रहे हैं गाइस, डू यू हैव एनी रिक्वेस्ट फॉर मी?
नाउ सिंस रोहित इज सिंग तो मुझे भी आई वुड लव टू सिंग, बट क्या कोई ऐसा गाना है जो आप सुनना चाहें प्लीज, तो मुझे बताइए फटाफट, फिर मैं गाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आई एम टोटली ब्लैंक राइट नाउ, क्योंकि दिस इज अनप्लान्ड। तो अभी हमारे पास हैं 24 लोग। 24 लोगों में से कोई लब पर आए, अरे अरे वाह। ये शुभी ऐसे कैसे? अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया उसको, मैं थोड़ा सा वैसे गुनगुना सकता हूँ बट वो चीज नहीं आती मुझे अभी। मैं तुम्हारा। हम्म, तस्वीर के सहारे, ये कौन सा सॉन्ग है? पता तस्वीर के सहारे। नहीं। लब पर आए में यार मुझे अभी उसका वो नहीं आता पोर्शन, जो वो जो धाकड़ वाला पोर्शन है, बट हाँ। थोड़ा सा देखता हूँ ट्राई करके। धड़क, अरे यार ये गाने मुझे आते ही नहीं अच्छे से, बट थोड़ा थोड़ा चलो गा देता हूँ जब सब लिख रहे हैं तो। ऐसा समझ में नहीं आ रहा, मैं वैसे ही गा देता हूँ क्योंकि आई डोंट रिकॉल द सॉन्ग, मुझे पूरा नहीं आता शुभी, बट जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने। याद तिहारी आए, मुझे याद नहीं है। मन लागे रे पछताने हो। स्केल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलत उठाया, मुझे नहीं आता। यार नहीं आता मुझे। सो शुभी मैं इसको प्रैक्टिस करके सुनाऊंगा। मैं रोहित ट्राई स्केल करके करूँ? एक बार स्केल देना, हाँ मैं ट्राई करता हूँ फिर। अभी आप ए माइनर बस ठीक है, तुम स्केल दो मैं गाता हूँ। यार तुमने ज्यादा ऊंचा नहीं कर दिया ये एकदम से मेरे लिए? नहीं, मैंने आपका जब आप गा रहे थे ना उसको नीचे कर दिया मैंने। नहीं बट अभी यार है लब पर आए, ये वाला बज रहा है अभी। हम ठीक है। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने। याद तिहारी आए सताने, मन लागे रे पछताने हो। मोरे सैया मैं लागू तोरी पैया, बलमवा ना जाओ परदेस। मुझे इसका वो पोर्शन नहीं आता अभी जो ऐसे वाला है, बट थोड़ा बहुत। लागी हाँ बहुत। जिया कोठे, बस ऐसे आते आता है मुझे, रफ रफ आता है थोड़ा थोड़ा, बट ये बहुत ही अमेजिंग है। सो आई रियली वांट टू लर्न दिस सॉन्ग एंड देन सिंग फॉर यू गाइस। साथ में शुभ, करेंगे। हाँ जी, साथ में कोलैब करेंगे इस गाने पे। साथ में करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। ओके, आई थिंक मैं कुछ वैसे गा देता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं गा सकता हूँ एक्चुअली। अरे यार ये लोग बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं जबकि इतना अच्छा मैंने गाया नहीं, बट थैंक यू सो मच पीपल हु आर राइटिंग दिस। भालो। खूब भालो, ये शी इज माई वाइफ। वाह।
दो लाइंस हैं जो मुझे ये गाना बहुत पसंद है. तो somebody has written लाल इश्क. अच्छा, मेरी मॉम ने लिखा है लाल इश्क. चलो लाल इश्क गाता हूँ, मुझे आता है थोड़ा थोड़ा. तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा. मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क. अरे थैंक यू सो मच. सुपर. थैंक यू रोहित, एंड थैंक यू एवरीबडी एल्स. थैंक यू मम्मी, आपने ये गाना रिक्वेस्ट किया. मुझे बहुत ही पसंद है, बट ये बहुत ही मुश्किल है, तो मैं इसको बहुत ही कम गाता हूँ वैसे. बट क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो आई थिंक आई पिक्ड द मोस्ट डिफिकल्ट सॉन्ग. सूदिंग एज यूजुअल. अरे महक, थैंक यू सो मच. ओके, विल कम बैक टू मुझे रोहित. भी सिखा दो, हाँ जी. मुझे भी सिखा दो सिंगिंग, मेरा बड़ा मन करता है. करेंगे साथ में थोड़ा सा कुछ ना कुछ. हाँ. ओके कूल. सो लेट्स गेट बैक टू यू. मेरा बहुत हो गया, शो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है. तो अब आई थिंक फिर से हम वापस चलते हैं कुछ रिक्वेस्ट्स के लिए. सो गाइज, अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है जो आप सुनना चाहते हो रोहित से ऑन द कीबोर्ड, तो प्लीज जल्दी से टाइप करो, एंड देन रोहित विल स्टार्ट प्लेइंग फॉर यू. रोहित कोई पुराना गाना आता है कोई गाना? कौन सा भैया? कोई पुराना? वाह यार, बहुत ही अच्छे अच्छे गानों की रिक्वेस्ट आ रही है पे. हमें तुमसे प्यार कितना. ओह. बोलो बोलो. कम आ रही है, हाँ फिर से. और कोई? शेप ऑफ यू. कोई पॉसिबल नहीं है, सुनना पड़ेगा बहुत. अच्छा ओके. तुम मिले. तुम तुमने कौन सा? अ, नहीं.
गीत ये कौन सा वाला है? तुम मिले दिल खिले पुराना वाला, या तुम मिले? चलो जब तक वो टाइप करता है, नेक्स्ट हम देखते हैं रोजा, रोजा जाने मन, नहीं, छूकर मेरे मन को। ये तो तुम बजा चुके हो ना? ओके। यार आई विश हम ऐसे, तुम बजा रहे होते और मैं गा पाता, बट ये अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाता ऐसे। हाँ, तुम हो, तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। तुम हो मिले हो पास तुम। मेरे फिलहाल। अरे बाप रे, धड़ाधड़ शुरू हो गए तो। बहुत सारे आ गए तो मिले हो तुम उनको। फिलहाल। सॉरी, गाना चेंज हो गया। अमेजिंग। सच कह रहा है। ये तो अब ये कौन सा है? आवारा हूँ। पुराना है। आवारा हूँ नहीं, ये नहीं सुना मैंने। चिकनी चमेली, ओ माय गॉड। ओह, अच्छा, मैं आपको बताऊं ये गाना क्यों लिखा भैया ने, और जिसने भी लिखा है यार, ये भाभी ने लिखा है गाना। नहीं, नीना इज माय मदर, विदुषी इज माय ओके। वाइफ। ओके, हेलो आंटी। अच्छा, इस गाने इसके नाम से एक स्टोरी है, बताऊं? छोटी सी है। हाँ, 2 मिनट है तुम्हारे पास। हाँ, क्यों हुआ क्या था, मेरे को ना एक ऑडिशन में जाना था कहीं किसी कंपटीशन में। तो वहाँ पे शायद 8 या 9 कीबोर्डिस्ट आए थे वहाँ पे। तो कोई नेशनल एंथम प्ले कर रहा है, कोई जनगण, कोई वंदे मातरम प्ले कर रहा है, कोई डिवोशनल प्ले कर रहा है। और मैं चिकनी चमेली रेडी करके गया था घर से अपने। और अब सामने जजेस बैठे हैं, जजेस से पूछा आप क्या प्ले करोगे। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि सबने ना देशभक्त पैट्रियोटिक सॉन्ग प्ले करे, किसी ने डिवोशनल प्ले किया, और मैं चिकनी चमेली लेके गया हूँ। उससे मुझे ना बहुत ही था। फिर मैंने एक्चुअली हाँ प्ले भी किया मैंने। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, प्ले कर दो। थोड़ा सा बजाओ। और यार, इतना याद है मेरे को अभी। आगे कैसे? नोट हजारों के। सॉरी। इट्स ओके। हेलो पारुल। सार्थक भैया, ओए, सार्थक भैया क्यों लिखा भैया? थैंक यू। अच्छा तो थैंक माय यू मॉम, आंटी। माय मॉम सेज थैंक यू टू यू बिकॉज यू प्लेड चिकनी चमेली। जो कि इसका मतलब पता है क्या है रोहित? इसका मतलब क्या है कि ये गाना देखो, वैसे लोग, आई डोंट नो कि जनरली कोई रिक्वेस्ट करेगा कि नहीं, बट दे आर डूइंग सम रिसर्च ऑन यू। अभी उनको पता चला है कि ये कहीं से तुम बजाते हो, एंड दैट्स व्हाई। अच्छा चलो, नेक्स्ट इज कबीरा सॉन्ग। कबीरा।
बस यार ये मैं थोड़ा सा गाऊं प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, सिर्फ लाइंस। थैंक यू। टूटी चार पाई वही ठंडी पुरवाए रास्ता देखे, दूधों की मलाई वही मिट्टी की सुराए रास्ता देखे, कैसे तेरी खुद गर्जी लब नमक रमे ना मिसरी, कैसी तेरी खुद गर्जी तुझे प्रीत पुरानी मिसरी, मस्त मौला मस्त कलंदर तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाए यार, रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। ये मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, वेरी मेलोडियस। आई थिंक आपकी फैमिली, पूरी फैमिली मेंबर्स है ना यहाँ पे सारे? बहुत सारे हैं हाँ, आंटी जी भी है। माई मॉम, माई डैड, माई वाइफ, माई सिस्टर, माई brother-in-law, some of my aunts, uncles. Yeah, I see almost everybody. भैया भाभी, उनका बेटा। मेरे का आई लव, ओह शिट, क्या ठीक है लिखते हैं। तुम्हारे लिए आया वो, मेरे लिए तो हो नहीं सकता। ये किसी के लिए भी नहीं है, तो कोई और रोहित की बात कर रहा होगा। ओके ठीक है रोहित, तुमने आई नो कि तुमने और भी शायद रिक्वेस्ट देखे होंगे तुम्हारे लिए बहुत सारी, ये सॉरी मैं इसमें थोड़ा भटक गया क्योंकि मुझे ये गाना इतना ज्यादा पसंद है कि मुझे लगता है कि यार हाँ, कभी भी मौका मिले तो थोड़ा सा गा ही दो। खूब भैया सोनी भैया, खूब बढ़िया सोनी भैया। अच्छा ओके, उधर खट्टर। तो ये इसलिए अब मैसेजेस कर रहे हैं तुम्हारे फ्रेंड्स कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम भी हैं, सिर्फ मेरी फैमिली नहीं है, तुम्हारी तरफ से भी हैं लोग। बहुत सारे हैं। बहुत सारे। विदित, हेलो विदित। हम दिल दे चुके सनम, यार ये तुम्हें आता तो बजाओ ना प्लीज, आई जस्ट लव दिस। ये मुझे सुनना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं। सुनना पड़ेगा, बहुत बहुत कभी पहले तेरे प्ले किया था। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अरे बाबा, जरा जरा गाने आ रहे हैं कहाँ है ऐसे? तू ही आना, जरा जरा, सलोनी वर्मा। हे हे आया तुम्हारे लिए, लिखो। ये गाना गैस कर दो कौन सा है ये, भैया आप मत बताना। अरे ओके ठीक है, चलो ऑडियंस से पूछते हैं, बताओ ये कौन सा वाला गाना था जो अभी 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 रोहित ने बजाया था। अब तो बता दो। हाँ बताएंगे, टाइप करने में टाइम लगता है ना। सलोनी से प्ले नहीं अगेन, यार। बता तो दिया। जरा जरा शिरिन, यस। सिरी, ये बहुत अच्छा गाती है भैया, सिरी, शिरीन। अच्छा ओ नाइस। इसको मैं ये बंगाली है, इसको मैं सिरी बोलता हूँ।
सीरी, जो ओके, एप्पल में सीरी होता है इसको वो सीरी बोलता हूँ। और बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। नाइस, गुड टू नो. इतना- So, Siren, in that case, there is an open episode on 24th October, जो इस सीजन का लास्ट एपिसोड है. तो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट प्लीज आप मुझे मैसेज करना. माय आईडी इज yhide_सार्थक. yhide ये रहा पीछे लिखा हुआ स्पेलिंग _सार्थक. तो प्लीज अगर इफ यू वांट टू सिंग लाइव और आप आना चाहते हो मेरे साथ शो में, तो 24th October इज द डेट व्हेन यू कैन कम लाइव एंड सिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो आप मुझे मैसेज करना एंड विल टॉक अबाउट इट. तेरी मिट्टी भैया प्लीज, तेरी मिट्टी तेरी भैया. मिट्टी नहीं है भाई। चलो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा तेरी मिट्टी। अच्छा, यू नो दिस गाय दिव्यम. हाँ, फ्रेंड है मेरा, छोटा सा दोस्त है। छोटा सा दोस्त, ओके. हाँ, ये भी अभी कीबोर्ड सीख रहा है, सिंगिंग भी सीख रहा है साथ में ये। इसने अभी लास्ट ईयर में शायद किया है। वाओ, नाइस. ओ माही वे. ओ माही, ये कौन सा है ओ माही? ओ माही वे. यस, ये गाना भी बड़ा अच्छा है. हाँ, ओके, सो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम क्योंकि 58 मिनट्स होने वाले हैं. तो ये एज यू नो कि 1 घंटे में ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट सिचुएशन. तो हम इसको पूरी समझदारी के साथ खुद ही खत्म करेंगे, इससे पहले कि इंस्टाग्राम हमको यहाँ से भगा दे. तो thank you Rohit for coming. It was wonderful to talk to you and it was wonderful to see all of your instruments and your friends around. I'm sure कि वो तुम्हें मोटिवेट कर रहे होंगे वहां से बैठे बैठे. तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ओके, मैं तो वो मुझे दिखा नहीं सकता को किस हाल में बैठे मेरे सामने। वो हम लेकिन वन ऑन वन पता- वो हम वन ऑन वन वीडियो पे देखेंगे. हाँ, पक्का। ठीक है. ओके, सो थैंक यू रोहित एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग टुडे. जितने भी लोग अभी तक हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया. जितने भी रोहित के फ्रेंड्स फैंस हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच. मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं उनके लिए थैंक यू सो मच. सो रोहित, बिफोर वी गो, डू यू वांट टू से एनीथिंग टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, माय फैमिली, मी, यू, कुछ भी? थैंक यू सो मच। आप जितने भी आए हो सबके थैंक यू सो मच। और मैंने नोटिस किया कि मेरे को बहुत लोग फॉलो करते हैं और बहुत लोग मुझे मोटिवेट करते हैं, मैसेज करते हैं मेरे को। तो सबके थैंक यू सो मच मेरे शोज पे आने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। परफेक्ट. सो 59 मिनट्स हो गए हैं, अभी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होने वाला है. उससे पहले कि वो जाए, थैंक यू एंड टेक केयर. साइगन आ रहा। बाय बाय। बाय.